Good morning, dear students. Welcome you all in the video lecture of the subject differential equations, and the topic name is solution in series. I, Dr. Bharat Goyal from Department of Mathematics, GSS DGS Khalsa College Patiala, welcome you all in this video lecture. So we would have the differential equations of second order in this topic, and we have to find a solution in the terms of power series of that differential equation. So one thing I have here quoted is, if y is equal to summation n is equal to 0 to infinity cn x raised to power n. That means we all here suppose the solutions in the form of a power series like this, and this is a power series with center at 0. So whenever we are asked to make a solution about the point 0, then we will select this type of solution in series, the value of y according to this. And here uh, the summation varies from 0 to infinity, and we have to solve the values of cn to find the solution. So if y is equal to this, then y dash will be equals to, if you do the derivative of this series, then according to power rule, x raised to power n, the derivative is n x raised to power n minus 1. Cn is here as it is. And one thing you have to note here is the index drops to 1. Previously we have the index n equals to 0, and now we have the index n equals to 1, because if we expand this series, if we expand the value of y like this, if we open the summation, we have c naught plus c1x, sorry, it will be c naught plus c1x, then and similarly आगे भी आ जाएगा c2x square and so on. So whenever you do the derivative, this term c naught will be equal to 0. The constant term will be 0, and you will start from c1 in the first derivative. That's why here we have n equals to 1 to infinity. Similarly, whenever you do the second derivative, again according to the power rule, n into n minus 1, x raised to power n minus 2, and also the index drops to n equals to 2 to infinity. Means one index is also dropped, because in the second derivative, the c1, the derivative of c1 also becomes 0. So this is a rule to make the derivative whenever we have supposed the series of this type. And if all the cn's are 0, then obviously the series is also equal to 0. Then next definition is analytic at a point. A function f is analytic at a point if it can be represented by a power series in x minus a with a positive radius of convergence. Whenever we have a function f and we can expand it in a power series of x minus a, then we can say that function is analytic at the point x equal to a. For example, you all are aware of this type of series. E raised to power x has a power series expansion like this. Similarly, sin x has power series expansion, and cos x has a power series expansion. And all these power series expansions are about the point x equal to 0, because here we have taken x, x square, x, and then x square, then x cube. That means our a is 0. That's why all these functions are analytic at x equal to 0. Now the results which we have to follow in solving the solution of differential equations, and one of the thing which we need is to make such type of terms as a one power series. You all here can see that summation here varies from 2 to infinity, and here summation varies from 0 to infinity. But we have to make all these terms under a one summation. Then what we have to do here, अभी क्या करेंगे देखिए आप. सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसको आप चेक करेंगे कि अगर आप n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ पर n इक्वल टू 2 आप पुट करते हैं तो पहली टर्म आपके पास क्या आएगी, x रेज टू पावर 0.
और इसी तरह से ये वाला समीशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप n को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर पहली टर्म किसके लिए आएगी, x रेज टू पावर 1 के लिए। तो ये वाला समीशन हमारा स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू x पावर 0 से, और ये वाला समीशन हमारा स्टार्ट हो रहा है x पावर 1 से। तो आपको ये करना है पहले तो कि इसमें ये x रेज टू पावर 0 वाली टर्म एक्स्ट्रा है, इसके बाद x रेज टू पावर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, फिर ये इसके साथ मैच करेगा, फिर ये इसके टर्म्स के साथ मैच करेगा। तो आपको पहले क्या करना है, इसमें से जो x रेज टू पावर 0 वाली टर्म है उसको पहले से अलग करके निकाल देना है इस समीशन में से। तो ये देखिए, ये यहीं पे यही सेम समीशन लिखा हुआ है। तो x इक्वल टू 0 वाली टर्म कैसे आएगी, जब n को आप 2 पुट करेंगे, तो n को यहाँ पर आप 2 पुट कीजिए, तो आपके पास ये टर्म बनेगी 2 इंटू 1 c2 x रेज टू पावर 0। और यहाँ पर आप देखिए, अगर x रेज टू पावर 0 वाली टर्म हमने निकाल ली, सिर्फ n इक्वल टू 2 पुट किया था, तो बाकी की टर्म्स कहां से मिलेंगी हमें, n इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट करके। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों समीशंस जो हैं ये दोनों सेम ही टर्म से स्टार्ट होंगे, दैट मींस x रेज टू पावर 1 से ही स्टार्ट होंगे। ये भी x रेज टू पावर 1 से स्टार्ट होगा और ये भी x रेज टू पावर 1 से ही स्टार्ट होगा। तो पहले आपको यही करना है कि ये दोनों जो समीशंस हैं इनको स्टार्ट अगर ये a की पावर से हो, इस तरह से आपको इनको कन्वर्ट कर लेना है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको जिस समीशन में टर्म्स एक्स्ट्रा हैं वो वाली टर्म्स एक्स्ट्रा आपने निकाल देनी है। जैसे इस समीशन में x रेज टू पावर 0 वाली टर्म एक्स्ट्रा थी और उसके बाद में इसके साथ मैच करनी शुरू हो गई, तो आपने वो वाली टर्म को बाहर निकाल दिया और बाकी टर्म्स हमारे पास एज इट इज। तो अभी क्या करेंगे, ये हमारा किससे स्टार्ट कर, कौन सी पावर से स्टार्ट हो रहा है, x रेज टू पावर 1 से। तो आपको क्या करना है, जस्ट इन दोनों को समीशंस को अगर कॉमन करना है, इसकी जो पावर है n-2 इसको आपको k पुट कर देना है फॉर द फर्स्ट सीरीज, और यहां पर पावर कितनी है आपके पास, n+1, इसको भी आपको k पुट कर देना है, k इक्वल टू n+1 फॉर द सेकेंड सीरीज। और इसी अकॉर्डिंग आपको n की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू क्या होगी, k+2। तो यहां पर n की वैल्यू k+2 और यहां पर भी n की वैल्यू k+2 और c के सफिक्स में भी n की वैल्यू k+2। सिमिलरली यहां से n की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, k-1। तो यहां पर आपको n की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है k-1 और यहां पर भी k-1। तो इस तरह से आपके पास ये जो सीरीज है राइट हैंड साइड है जो, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और k आपको कहां से स्टार्ट करना है दोनों समीशंस में, अगला क्वेश्चन ये है। तो ये देखिए k इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों के दोनों समीशंस हमारे किससे स्टार्ट होने से, x रेज टू पावर 1 से स्टार्ट होने थे। जिस पावर से वो स्टार्ट होने थे वो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स लगा देना है। तो k इक्वल टू 1 इसमें भी और इसमें भी, और जो चेंजेस मैंने बताए थे वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म्स इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब ये दोनों समीशंस को आप कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों समीशंस k इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और x रेज टू पावर k, दोनों में x रेज टू पावर k है, तो ये कॉमन आ गया और समीशन k 1 टू इंफिनिटी, एंड वी विल गेट k+2 k+1 ck+2 एंड हियर ck-1। तो ये तो मेथड था कि कोई भी अगर दो हमारे पास पावर सीरीज हैं तो उनको एक सिंगल पावर सीरीज में आपको कैसे लिखना है। अब इस टेक्निक को हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे, जो मेन क्वेश्चंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाने से पहले आपको एक चीज की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, और वो है द ऑर्डिनरी पॉइंट। अभी ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, अ पॉइंट x0 इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ बोथ p एंड q इन 6। अभी इसमें आपने क्या किया, इस डिफरेंशियल फिफ्थ डिफरेंशियल इक्वेशन से सिक्स्थ वाली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आ रही है आपके पास, ये देखिए, जस्ट आपने क्या किया, y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 बनाया है, तो इसका मतलब a2x के साथ आपने इसको डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को, तो इसके नीचे a2x आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपके पास, और इसी तरह से इसके नीचे भी आपके पास a2x आ जाएगा, और ये ही आपके पास वैल्यू बनेगी px और qx की। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे सारी टर्म्स के साथ, तो ये इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, y डबल डैश a1x बाई a2x को आपने मान लिया px और a0x बाई a2x को आपने मान लिया qx। तो इस फॉर्म में जब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे, देन if point x0 is said to be an ordinary point if both p and q are analytic at x0। अब दोनों के दोनों जो px हैं और जो दो qx हैं, ये x0 जिस पॉइंट के अबाउट आप बात कर रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट ये दोनों एनालिटिक होने चाहिए।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस कोट होंगे वो सभी के सभी इस टाइप के होंगे कि px की वैल्यू भी और qx की वैल्यू भी रैशनल फंक्शन टाइप में होगी। रैशनल फंक्शन मींस जिसके न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल रहता है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल रहता है। तो px में भी न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होगा, यानी ये a1x भी एक पॉलिनोमियल होगा और ये a2x है जो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, सिमिलरली qx में। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस पॉइंट पे आपको चेक कर लेना है कि ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का, a2x जो डिनोमिनेटर में आया px की वैल्यू में और qx की वैल्यू में, ये इस x नॉट पे कहीं जीरो तो नहीं हो रहा। अगर ये x नॉट पे जीरो हो रहा है तो हम कहेंगे px और qx जो है वो एनालिटिक नहीं है x नॉट पे। और अगर मान लीजिए ये नॉन जीरो, इसका डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो ही रहता है दोनों का, तो हम x नॉट को क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो इस तरह से आपने एनालिटिसिटी इसकी चेक कर लेनी है। और अगर जीरो आ रहा है तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है उसके लिए आपको सॉल्यूशन इन पावर सीरीज कैसे बनाना है। तो ये देखिए, एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पर कोट करनी चाहूंगा। सपोज ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपका a2x जो है वो 1 माइनस एक्स है, जो a1x है वो आपका 2x है और a0x जो है वो आपका x स्क्वायर है। लेकिन जब आप a2x के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो px आपका क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर px क्या बनेगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, और qx क्या बन जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अभी इन दोनों टर्म्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो जीरो कहां पर बनेगा, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे। सो x इक्वल टू 1 इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट बिकॉज a2x is 0 at x equal to 1, and the ordinary points are, rest of the points are the ordinary points, r minus 1. That means except 1 all are the ordinary points. तो इस तरह से आपको ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट के लिए चेक कर लेना है। उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपको ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट की बात समझ आ गई होगी। जस्ट सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपको इसका डिनोमिनेटर चेक करना है कि किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वो सिंगुलर पॉइंट है, और जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है वो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो अभी क्या रहेगा कि जो थ्योरम 5.1 है ये हमें क्राइटेरिया बताती है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पावर सीरीज में सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। For the ordinary point, this theorem is applicable for only ordinary points. If x equal to x naught is an ordinary point of 5, fifth differential equation, that is the same which we have quoted in the previous slides, we can always find two linearly independent solution in the form of power series centered at x naught. That is, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की पावर सीरीज बनाएंगे और इसकी हेल्प से हम दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो इसके फाइंड करेंगे। वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको एग्जांपल के साथ प्रॉपरली बताया जाएगा कि कैसे आपको पावर सीरीज सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की है, y डबल डैश प्लस x इंटू वाई इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y डबल डैश मीन्स d2y by dx स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 0। सो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो px है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 ही है, px जो है वो हमारा जो है वो 0 रहेगा क्योंकि y डैश का कोएफिशिएंट नहीं है, और qx की वैल्यू हमारे पास x रहेगी। तो p हमारा 0 है और q हमारा x है, q हमारा x है। तो जाहिर सी बात है दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा ही नॉन जीरो ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 है दोनों के, आप ये बोल सकते हैं। तो इसी वजह से इसके कोई भी फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स नहीं है। सो ऑल आर द पॉइंट्स आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स। अभी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे फॉर द ऑर्डिनरी पॉइंट 0 अबाउट x इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आप एक पावर सीरीज सॉल्यूशन सपोज कर लेंगे, y इक्वल टू समीशन n0 टू इन्फिनिटी cn xn। ये हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा जब आप x इक्वल टू 0 के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा से y की वैल्यू आप इसी तरह से सपोज करेंगे इन टर्म ऑफ पावर सीरीज। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, y डैश तो है नहीं हमारे पास, सीधा y डबल डैश है। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आप सीधा ही लिख लीजिए, कैसे आएगी, जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको बताया था। ये देखिए, दो इंडेक्स ड्रॉप हो जाएंगे, एक इंडेक्स फर्स्ट डेरिवेटिव में ड्रॉप हो गया और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव करते वक्त ड्रॉप हो गया। तो n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी n n-1 cn x n-2।
तो अभी आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y डबल डैश प्लस एक्स वाई, तो y डबल डैश की वैल्यू ये हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी, ये देखिए, ठीक है। और इसी तरह से y की वैल्यू जो है ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पर वही क्राइटेरिया हम लगाएंगे कि आपको क्या करना है कि इसमें दोनों पावर सीरीज को आपने कंबाइंड करना है एक ही समीशन के अंडर। तो इसमें आप देखिए ये वाली पावर सीरीज जब हम n इक्वल्स टू 2 ऑपरेट करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए इसमें पहली टर्म कौन सी बनेगी, x रेज टू पावर 0, ये हमारे पास इसकी पहली टर्म बन रही है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर कौन सी पहली टर्म बनेगी, x इक्वल्स टू यहाँ पर सॉरी एक बात मैं यहाँ पर एक और क्लियर करनी चाहूंगा, यहाँ पर आपके पास इसको आप हटा दीजिए, पहले ये वाला x है जो ये भी हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर हम अंदर पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x रेज टू पावर n जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x रेज टू पावर n प्लस 1। तो अभी इस पावर सीरीज को आप देखिए कि ये स्टार्ट हो रही है x रेज टू पावर 0 से, क्योंकि n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना है, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो x रेज टू पावर 0, और ये हमारी स्टार्ट हो रही है x रेज टू पावर 1 से। तो आप इनको इन दोनों पावर सीरीज को एक ही समीशन इंडेक्स के अंदर लेकर आना है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है यानी कि x रेज टू पावर 0, इसके बाद x रेज टू पावर 1 आएगा, x रेज टू पावर 2 आएगा, वो इसके साथ फिर कंबाइन हो सकेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से x रेज टू पावर 0 वाली जो टर्म है उसको आपको आपने अलग निकाल देना है। तो कैसे अलग निकलेगी, n इक्वल्स टू 2 पुट करके, तो यहाँ पर आप देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू 1 c2 यानी 2c2, और इसी फिर अगला इंडेक्स यहाँ पर हो गया n इक्वल्स टू 3, क्योंकि 2 हमने पुट कर लिया, अब n इक्वल्स टू 3 से ये स्टार्ट होगी। अब दोनों की दोनों आप चेक कर लीजिए, इसमें पहली टर्म आएगी x रेज टू पावर 1 और इसमें भी पहली टर्म आपके पास आएगी x रेज टू पावर 1। तो अभी दोनों की दोनों सेम इंडेक्स से स्टार्ट हो रही हैं, तो आपकी क्या सब्स्टिट्यूशन रहेगी यहाँ पर, ये जो n-2 है इसको आपको क्या पुट कर देना है, k, जैसे मैंने उसमें समझाया था आपको। और इसी तरह से यहाँ पर जो ये जो n+1 है इसको आपको k पुट कर देना है, उसमें आपको n-2 को k पुट करना है और इसमें आपको n+1 को k पुट करना है। तो अकॉर्डिंगली n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, k+2, और यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, k-1। तो सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो ये आपके पास ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये इस तरह से आपकी ये सीरीज जो है कंबाइन होके बन जाएगी। चेंजेस करेंगे जब आप n को जैसे पहले वाले में हमें n को k+2 पुट करना था और सेकंड वाले में हमें n को k-1 पुट करना था, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें किसके इक्वल गिवन थी, 0। सो अभी यहाँ पर मैं 8 नहीं, यहाँ पर मैं ठीक करना चाहूंगा, ये 2 है, सिंस 2 इज आइडेंटिकली 0 इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द कोएफिशिएंट्स आर, क्योंकि इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है तो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स हमारे 0 हो जाएंगे। तो पहले कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म मींस 2c2, दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट मींस c2 इज 0। फिर उसके बाद इसमें से आपको जनरली कोएफिशिएंट उठा लेना है x रेज टू पावर k का, तो ये सारे का सारा इक्वल्स टू 0। और k की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर देखिए 1 से, तो इसी वजह से k वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। सो अभी ये जो हमारे पास रिलेशन बन रहा है, ये थर्ड नंबर, यहाँ पर मैं ठीक कर दूं, ये थर्ड नंबर इज ए रेफरेंस रिलेशन, ये वाला एक रेफरेंस रिलेशन है, और इसी वजह से अभी हम इसमें से क्या करेंगे, ये जो ck+2 है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये क्या आ गई हमारे पास, -ck-1 अपॉन k+1 इंटू k+2। तो अभी आपको क्या करना है, k की वैल्यू को 1 अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू को अगर आप 1 पुट करेंगे, c3 की वैल्यू, c3 की वैल्यू किस में मिलेगी, इन टर्म्स ऑफ c0, ठीक है। तो ये देखिए c3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c0, फिर जब आप k को 2 पुट करेंगे तो आपको c4 की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ c1, फिर जब आप k को 3 पुट करेंगे तो c5 की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ c2, बट c2 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, वो हमारा 0 था, तो c5 हमारा 0 हो गया। अभी आप c6 k को जब आप 4 पुट करेंगे इसकी वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ c3, बट c3 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ c0, तो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास c6 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली c7 की वैल्यू आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ c4, और c4 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ c1, तो ये हमारे पास c7 की वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि सेकंड ऑर्डर की थी, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो है हमें अलाउड हैं, तो हमारे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यही रहेंगे, एक c0 और एक c1।
तो C6 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C0 आ गई, C7 की C1, आगे की आगे आप पुट करते रहेंगे तो इनकी टर्म्स में ही हमारे पास वैल्यूज बनती रहेंगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 6 पुट किया, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। आपको कुछ एक वैल्यूज निकाल लेनी है, एटलीस्ट हमारे पास 5 to 6 नॉन जीरो वैल्यूज जो हैं वो प्रेजेंट हों कोफिशिएंट्स की, तो सफिशिएंट रहता है। यहाँ पर हमने C11 तक सॉल्व किया है, तो यहाँ पर इसी तरह से C11 तक किया, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, इसे एक अधिक कम रखनी है, कम भी रख सकते हैं। तो आपको फाइनली क्या करना है, जो हमारे पास पावर सीरीज सॉल्यूशन है उसको आपको फाइंड करना है, क्योंकि पावर सीरीज हमने ये सपोज की थी समीशन CN(xn), तो इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे CN(xn), तो इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे पहले C0 आएगा, फिर C1x, फिर C2x², तो आपने जो वैल्यू सॉल्व कर रखी है वो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी। तो एक सीरीज आपके पास C0 को कॉमन निकाल कर बन जाएगी और एक सीरीज आपके पास C1 को कॉमन निकाल के बन जाएगी, और यही दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गए इसके, एक y1 और एक y2, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर से आपको सॉल्यूशन इन पावर सीरीज अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट, and we have taken here particularly the ordinary point is 0. In the further video lectures we will discuss about non-zero ordinary points and how to make a power series solution of that type of differential equations. So thank you very much.